Hello students, let's continue our second chapter, the tsunami, from the second part, page number 27. Okay, now in this part we will be seeing another story of tsunami, not from India. It is a story of the family who were stuck in Thailand beach, how they were struck and whether they came out from tsunami, क्या वो बच पाए सुनामी से, और बचे हैं तो कैसे बचे. तो सेकंड पार्ट अपन को ये एक्सप्लेन कर रहा है. सो लेट्स बिगिन फ्रॉम द सेकंड पार्ट. Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck. Okay, now students, it is not tsunami, it's जो उसका pronunciation है वो है tsunami. T silent है. When tsunami struck Phuket beach in Thailand, though she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on the television and made into a heroine. Why do you think they took that decision? तो सेकंड पार्ट में एक टिली स्मिथ जो है उसका सरनेम है. टिली स्मिथ का कहाँ है? शी इज़ फ्रॉम ब्रिटिश स्कूल, जो कि यहाँ पे थाईलैंड में एक बीच है फुकेट, वहाँ पे स्ट्रक मीन्स फंस गई थी वहाँ पे ड्यू टू सुनामी. नॉट जस्ट हर, उसकी फैमिली भी. बट यहाँ पे लिखा है कि उसने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, बट जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अपनी डॉटर को अलाउ नहीं करा कि वो इस सुनामी पे एंड हाउ शी रेस्क्यू द पीपल, उसके ऊपर इंटरव्यू करे या फिर उसको एज अ हीरोइन की फेस में लोग उसे जाने. इसमें क्वेश्चन अपन को एंड में दिया है, व्हाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन. तो ये डिसीजन उसके पेरेंट्स ने क्यों लिया ये अपन को इस पार्ट में पता चलेगा. वील बी स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर. Now here's a story from Thailand. The Smith family from southeast England were celebrating Christmas at the beach resort in southern Thailand. So what is the meaning of resort? A place where people go on holiday. तो वो यहाँ पे क्रिसमस की हॉलीडे पे इंजॉय करने आए थे इन थाईलैंड. Tilly Smith was 10-year-old school girl. Her sister was 7-year-old. Their parents were Penny and Colin Smith. So Tilly was small 10-year girl और जो उसके पेरेंट्स का नाम था मदर पेनी एंड फादर was Colin Smith. So let's continue. It was 26 December 2004. Deadly tsunami waves were already on their way. They had been triggered by massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. So what is the meaning of trigger? Trigger mean caused, it describes a sudden violent reaction. But here in the story it mean an undersea earthquake caused tsunami. So in Hindi easy language में triggered means कि अगर कोई भी चीज़ एक सडन रिएक्शन लाती है किसी भी चीज़ में तो वो उसको कहते हैं ट्रिगर. जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एक्सीडेंट देखा तो उसमें क्या हुआ, आई ट्रिगर्ड फियर, मेरे अंदर फियर की शुरुआत हुई. एंड ट्रिगर्ड मीन्स कहाँ से शुरुआत हुई, आफ्टर सीइंग दैट एक्सीडेंट. तो हेयर यहाँ पे क्या था, मैसिव अर्थक्वेक. दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय मैसिव अर्थक्वेक. वहाँ पे जो सुमत्रा की बात हो रही है, सुमत्रा इज़ एन आइलैंड ऑफ मलेशिया. But as you have seen, I'll show you the map again here. So here it is Andaman and Nicobar Island and here it is Indonesia down here. तो ये सब जब सुनामी आई थी और या फिर कभी भी आप देखोगे कि इस एरिया में वाटर एरिया like these islands are surrounded by water. So whenever these islands got earthquake या if you can say disturbance in sea, तो ये सिर्फ एक पार्ट को ही इफ़ेक्ट नहीं करता,
बहुत पार्ट को इफ़ेक्ट करता है। जैसे अपन ने पहले वाले पार्ट में देखा था कि जो सुनामी थी वो सिर्फ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे ही नहीं इफ़ेक्ट पड़ा था, वो तमिलनाडु की कोस्ट पे भी आई थी। ओके, सो हेयर यहाँ पे बता रहे हैं कि ऑलरेडी वहाँ पे मलेशिया में और यू कैन से सुमात्रा आइलैंड में ट्रिगर हो रखा था एक अर्थक्वेक, जिसकी वजह से सुनामी वेव वहाँ पे ऑलरेडी थी। सो लेटर वील बी सीइंग कि ये सुनामी इवन थाईलैंड के जिस बीच पे ये फैमिली थी वहाँ पे भी कैसे आती है। लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम हेयर। The water was swelling and kept coming in. Penny Smith remembered the beach was getting smaller and smaller. I don't know what was happening, but Tilly Smith sensed that something was wrong. Her mind kept going back to geography lessons and had taken in England just 2 weeks before she flew out to the Thailand with her family. So when the tsunami struck that beach, जहाँ पे वो लोग अपने क्रिसमस हॉलीडे स्पेंड कर रहे थे, वहाँ पे जैसे ही देखा कि उसमें कह रहे हैं कि वाटर वॉज स्वेलिंग। स्वेलिंग मीन्स जैसे अपन कहते हैं ना सूज गया है, बट हेयर इन दिस लाइन मीन्स वाटर वॉज रेजिंग एंड स्प्रेडिंग ऑल ओवर। जब भी अपन की स्वेलिंग होती है, अपन देखते हैं अपनी स्किन बड़ी हो जाती है और वो आसपास के एरिया में भी इफ़ेक्ट करती है। सिमिलरली वाटर वॉज अराउंड एवरीवेयर और वो बहुत स्पीड से रेज अबव मीन्स रेजिंग अबव मीन्स जो वेव है वो और ऊंची आ रही थी, जिसकी वजह से पानी बीच पे आ रहा था। सो शी वॉज सेइंग द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। और इवन यू कैन से जो लैंड था वो कम होता जा रहा था ड्यू टू द हाई वेव्स। तो ये उन पेरेंट्स को या फिर जो उस बीच पे है, ये उन लोगों को समझ नहीं आया। बट टिली द 10-year गर्ल, उसने क्या मेमोराइज करा, सोचा कि उसने जो जोग्राफी क्लासेस ली थी 2 weeks बिफोर, उसने इन छुट्टियों में आने से पहले वट एवर शी लर्नड इन जोग्राफी क्लासेस शी वॉज रिमेम्बरिंग। So she was remembering that why it is happening or what are the reason after this water waves. Next paragraph. Tilly saw the sea slowly rise and start to foam, bubble and form whirlpools. She remembered that she had seen this in the class in a video of tsunami that hit the Hawaiian Islands in 1946. Her geography teacher had shown her class the video and told them that tsunamis can be caused by earthquake, volcanoes and landslides. So finally Tilly, जो 10-year-old girl है, here you can see Tilly is so intelligent कि वो memorize करी है reasons. She is not panicking. अपन की क्या होता है जनरली कि अपन पैनिक कर जाते हैं, यू कैन से घबरा जाते हैं जब ये वाली ऐसी कुछ सिचुएशंस आती हैं। इवन इन अर्लियर पार्ट 1 वी सी बोथ द गर्ल एल्मास एंड 10-year गर्ल, व्हाट वाज द नेम, कैन यू थिंक ऑफ इट, मेघना, यस। तो वो क्या थे, वो उन दोनों ने भी सर्वाइव करा। दे क्लिंग टू द वाटर वुडन लॉग एंड वुडन डोर। तो यहाँ पे भी टिली वॉज इंटेलिजेंट और उसने मेमोराइज करा कि इन 1946 ऐसी सुनामी कहाँ आई थी, इन हवाईन आइलैंड। एंड हाउ शी रिमेंबर इट, क्योंकि उनको एक वीडियो बताया गया था और वो वीडियो अभी की जो उनकी सिचुएशन थी वो उससे रिलेट कर रही थी कि अभी क्या सिचुएशन हो रही थी कि वाटर जो सी वाटर है स्लोली राइजिंग मीन्स वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, या यू कैन से जो वेव्स हैं वो ऊपर को आ रही थी, फोम बन रहे थे, बबल्स बन रहे थे एंड वर्लपूल्स बन रहे थे। वर्लपूल्स मीन जब वाटर अपन इस वे में नीचे नीचे तक जाएगा, सो दीज आर कॉल्ड वर्लपूल, की पानी के अंदर ये स्वर्ल्स मीन गोल गोल चक्कर आपको अपने आप दिखेंगे, दोज आर कॉल्ड वर्लपूल। सो ये अभी की सिचुएशन को उसने रिलेट करा और उसको पता चल गया कि ये सुनामी है एंड शी गॉट द रीज़न वाई सुनामी अकर्स।
सुनामी आती कैसे, ये भी उसने याद कर लिया कि माइट बी अर्थक्वेक्स के थ्रू आती है, या फिर वोल्केनोज जब बर्स्ट होते हैं तब आते हैं, या फिर अगर लैंडस्लाइड हो जाए। तो ये तीनों सिचुएशन में क्या है, अपना लैंड जो है, अपनी अर्थ शेक करती है, एंड ड्यू टू दैट शेकिंग मूवमेंट इट causes tsunami. Next paragraph. Tilly started to scream at her family to get off the beach. She talked about an earthquake under the sea. She got more and more hysterical, said her mother, Penny. I didn't know what a tsunami was, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. So, after remembering, Tilly was shouting. She was shouting because she wants her family and the people on the beach to run from the tsunami in order to save their lives. तो उसकी मदर जो है टिली की, शी वॉज सेइंग, पेनी जो उनकी मदर है, शी वॉज सेइंग कि मुझे आइडिया नहीं है कि व्हाट इज़ अर्थक्वेक, व्हाट आर यू कैन से सुनामीज, बट उसका जो रिएक्शन था हिस्टेरिकल, किसका रिएक्शन, टिली का हिस्टेरिकल रिएक्शन. व्हाट इज हिस्टेरिकल, व्हेन यू आर हिस्टेरिकल यू शाउट, यू लाफ और यू क्राई इन अ वाइल्ड और एक्साइटेड वे विदाउट एनी कंट्रोल ऑन योर सेल्फ. तो हेयर माइट बी टिली वॉज क्राइंग एंड शी वॉज आउट ऑफ कंट्रोल, वो रोक नहीं पा रही थी अपने आप को, शी वॉज जस्ट स्क्रीमिंग एंड क्राइंग. तो ये देख के पेनी को पता चला, उसके मदर को पता चला कि समथिंग इज रॉन्ग. Next paragraph. Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. A number of tourists also left the beach with them. Then it was as if the entire sea had come out after them. I was screaming, "Run!" The family took refuge in the third floor of the hotel. The building withstood the surge of 3 tsunami waves. If they had stayed on beach, they could have been not alive. So here, after seeing this reaction, both family and all the tourists left that beach. उन्होंने वो बीच को छोड़ दिया और वो सब कहाँ आ गए, होटल के अंदर. And after that वो सिर्फ चीख रहे थे कि run run and save your life. And जहाँ पे वो जैसे ही होटल में आए तो वो होटल क्या था, withstood. The building was withstood means endured without collapsing, means उसने जो देखा था बिल्डिंग उसमें काफ़ी शायद सुनामी पहले फेस करी, बट वो withstood means खड़ा रहा, उसको प्रॉब्लम नहीं हुई. तो पीपल और टूरिस्ट थॉट कि ये वाली बिल्डिंग सेफ है, सो दे वेंट टू द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल एंड टाइमली ये लोग उस बीच से एंड माइट बी स्विमिंग पूल से उस थर्ड फ्लोर, होटल के थर्ड फ्लोर पे आ गए, तो उनकी लाइव्स बच गई. बट अगर ये सब वो रियलाइज़ नहीं करती टिली और वो सब टाइमली एस्केप नहीं करते, तो जैसे उसने बताया है कि जो सी है उसने क्या ले लिया, सी हैड कम आउट आफ्टर देम, कि सी उनके पीछे पीछे जो पूरा सी था वो भी उनके ऊपर आ जाता. बट ड्यू टू एन इंटेलिजेंट टिली everyone was safe and alive. Last paragraph. The Smiths later met other tourists who had lost entire family. Thanks to Tilly and her geography lesson, they had been forewarned. Tilly went back to her school in England and told her classmate her terrifying tale. So last में क्या हुआ, जो स्मिथ्स मीन्स पूरी फैमिली जो है वो दूसरे टूरिस्ट को मिली जिन्होंने अपनी फैमिलीज इस सुनामी में खो दी है. सो बट वो क्या कह रहे हैं, थैंक्स टू टिली और उसके ज्योग्राफी लेसन्स कि उन्होंने हमें फोरवॉर्न करा था. फोरवॉर्न मीन्स अर्ली वार्निंग, कि अगर कुछ होने से पहले अपन को पहले ही चेतावनी मिल जाती है या वार्निंग मिल जाती है तो अपन उसके लिए प्रिपेयर हो जाते हैं या फिर उस सिचुएशन से एस्केप ले लेते हैं. एंड लेटर व्हेन टिली वेंट टू इंग्लैंड, तो उसने अपनी क्लासमेट्स को ये टेरिफाइंग टेल बताई. टेरिफाइंग टेल मीन स्टोरी. सो हेयर द क्वेश्चन इज़ कि पेरेंट्स ने क्यों नहीं अलाउ करा होगा कि जो इंटरव्यू ऑन दिस, क्योंकि टिली वॉज सो स्मॉल, 10 year old. अगेन
जैसे फर्स्ट पार्ट में था कि ये एक बच्चे के लिए 10 ईयर किड के लिए बहुत ट्रॉमेटाइज वाला सिचुएशन है। ट्रॉमेटाइज मीन्स ऐसी चीज़ों को देख के जनरली लोग शॉक में आ जाते हैं। तो क्योंकि वो चीज़ बार बार रिमेंबर नहीं करवाना चाह रहे थे टिली को उसके पेरेंट्स, तो उन्होंने क्या इंटरव्यू देने से टिली को मना कर दिया। बिकॉज व्हेन यू इंटरव्यू तो आप उस सिचुएशन को रीथिंक करते हो एंड बताते हो कि एक्चुअल में ये हुआ था। बट पेरेंट्स वांट, टिली के पेरेंट्स ये चाहते थे कि टिली अब इस बारे में ना सोचे, तो ताकि वो ट्रॉमेटाइज ना हो सके या वापस फ्राइटन ना हो सके। एट द एंड जब वो इंग्लैंड गए, देन टिली ने अपने क्लासमेट्स को, जो उसका टेरिफाइंग एक्सपीरियंस था, वो अपने क्लासमेट्स से शेयर करा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द सेकेंड पार्ट। थैंक यू, बी सेफ।